Hello everyone, so welcome back to my channel as Khushi Yadav. In this video, I am going to share my first cabin crew experience with Indigo Airline, and also I'm going to share what the exact question they asked to me on that interview and with other candidate also. So my interview was on 26th August at Pinnacle Hotel in Lucknow, and my reporting timing was 9 a.m. to 12 p.m. and I reached the venue 30 to 40 minutes prior my reporting time. So it means I reached the interview 8:20 around. Huh. And when I reached the interview, I was mentally prepared that I'll reach the interview before the timing, so I get some time to relax myself. Then the interview procedure was going on. But what actually happened there, when I entered the venue, I saw that around 8 to 10 girls coming from the interview room where the HR is taking interview, from that room, because they are rejected. So I get to know that, so I know that the interview is already going on. And one of the girl who was rejected, I asked to her that I asked to her that हम लोग को वो बैच नंबर कैसे मिलेगा. I asked that to her. So she said that ki there's not any scenario of batch number or something. You just entered into the interview room where the HR is taking interview. You just entered into the interview room with batch of 10 girls, and directly the HR is going to take your CV and start your interview. So I said okay. So I think firstly I relax myself for 2 to 3 minutes, then I going to give my interview. But I just sat there for only 1 to 2 minutes. And what happening that on that day the HR is Rakhi ma'am. Who don't know, so I tell you that in Lucknow mostly Rakhi ma'am is going to take you interview, mostly, not every time, but mostly she is going to take you interview. And on that day she is there. So she just came from the interview room and just stand मैं आपको कैसे समझाऊँ, इंटरव्यू रूम और जहाँ हॉल, उन दोनों के बीच में जो गेट था वहाँ पे वो खड़ी होगी. शी इज जस्ट सेइंग दैट इन वेरी एग्री वे दैट आप लोग को इंटरव्यू देना है कि नहीं देना है, आप लोग क्या करने आए हो यहाँ पे. जिसको इंटरव्यू देना है वो जल्दी जल्दी अंदर आए और बाकी जो लोग रिजेक्ट हो चुके हैं वो वेन्यू खाली करे. She is just saying like this. So firstly I'm already nervous, and when she say like this my confidence is just go down. So what? And मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी. अगर जो पहले से ही राखी मैम को जानता है वेल एंड गुड, बट जो नहीं जानता मैं उसको बता रही हूँ कि आप राखी मैम को देख के ना वो HR वाली फीलिंग नहीं आती है. बिकॉज शी इज मतलब थोड़ी सी होते नहीं बच्चों टाइप की, वैसे उनका पर्सनालिटी है. मतलब थोड़ी सी हाइट, थोड़ी सी मतलब नॉर्मल हाइट की, और पतली सी, मतलब बहुत ज़्यादा पतली तो नहीं बट फिट, मतलब थोड़ी फिट टाइप की. और उस दिन उन्होंने बहुत मतलब ऐसे बहुत फॉर्मल ड्रेस नहीं पहना था, उन्होंने जस्ट एक नॉर्मल टी शर्ट डाली थी और एक ट्राउजर पहना था और विथ नो मेकअप. सो मतलब उनको देख के मुझे यही फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि वो HR है, वो हमारा इंटरव्यू लेने जा रही हैं. उसके बाद फिर मैं जब उन्होंने ऐसे बोला तो मैं तुरंत अंदर चली गई. उसके बाद हमें बैग तक रखने का टाइम नहीं मिला था उस दिन. ये सिनेरियो वहाँ पे हो रहा था. मुझे क्या लगता है ना कि और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है. सो शी इज टेकिंग द इंटरव्यू प्रायर द रिपोर्टिंग टाइम कि क्राउड ना इकट्ठा हो वेन्यू पे. मुझे लगता है उनका यही पर्पस था, इसीलिए उन्होंने उस दिन इंटरव्यू पहले उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. व्हेन आई जस्ट एंटर्ड इनटू द इंटरव्यू रूम, sat there in front of that where she is taking interview. एंड फिर हम लोगों ने अपनी अपनी CV कलेक्ट की. तो ऐसा हुआ था, हमने 10 लोगों ने अपनी CV वहाँ पे रख दी थी. उन्होंने बोला था कि आप अपनी CV यहीं पे कलेक्ट कर दो. हमने रखी. तो फिर वो आई तो सबसे पहले उनका क्या था, उन्होंने सबको बोला कि कुड यू प्लीज स्टैंड अप. एंड व्हेन वी स्टैंड अप she is just notice each and everyone's height and weight, and according to her who was not fit into the BMI because she's already taking the interview so long. So she has that idea ki who are going to fit into our height criteria and weight criteria or not. तो
according to her, whose height was not and weight are not fit for the interview, she prior said to them कि you just go for firstly BMI, then came for the first round. ऐसा हुआ था वहाँ पे. फिर then 10 of us, हमारे में से 10 में से 4 से 5 लड़कियाँ, वो सिर्फ उसमें उन्होंने भेज दिया उनको कि आप पहले वो BMI करवा के आओ. फिर बाकी लड़कियाँ और आई, फिर जस्ट हम लोग सब लोग बैठे, फिर इंटरव्यू शुरू हुआ. तो उन्होंने 10 लोग का उन्होंने CV ली थी, बट उन्होंने 5 ही दे दी थी. 5 उनको, मतलब पहले बोला कि 5 ही लोग का वो ली. फिर जस्ट आस्क दी क्वेश्चन, गोइंग टू आस्क दी क्वेश्चन. वो क्या कर रही थी, सिर्फ एक लोग से एक ही क्वेश्चन पूछ रही थी. शी इज नॉट गोइंग टू आस्क मैनी क्वेश्चन टू यू, जस्ट शी आस्क ओनली 1 क्वेश्चन टू 1 पर्सन. और वो मतलब मैंने उनके एक्सप्रेशन से क्या समझा कि शी इज डोंट वांट लॉन्ग आंसर, सो जस्ट वांट अ आंसर फॉर 1 to 2 minutes, not more than this. One of the candidate, she answered the question for almost 3 to 3.5 minutes. So I saw her facial expression that she is just going to stop her, but before she said her that please stop her, she already completed it answer. So according to me, don't give you under too much long, just keep it for 1 to 2 minutes only, that's enough. To if you have much more to speak, then go only to 2 to 2.5, not go more than this. Because if she said that if she's going to see you that just stop it, so it's create a very bad impression. This is not good for you, so keep this in your mind. Then हाँ, फिर सबसे उन्होंने एक इंटरव्यू लिया और एक लोगों से मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछा और इंटरव्यू बस उन्होंने बस ऐसे एक लोग से पूछा फिर जस्ट. और वो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रही थी. अब जैसे ही बोलना शुरू कर दे रहे थे ना, आपके 4 से 5 लाइन बाद वो CV पे, उनके पास CV थी, पेन थे, वो लिखना शुरू कर दे रही थी, थोड़ा बहुत कुछ लिख दे रही. हमारे में क्या हुआ था कि इन 5 of us, no one is going to select on this round because राखी मैम इज गोइंग टू रिजेक्ट मैनी कैंडिडेट. वो जल्दी, वैसे वो बहुत जल्दी सेलेक्ट नहीं करते. वो जितना मुझे पता चला है कि शी इज़ नॉट ईजली गोइंग टू सेलेक्ट यू. उनका कुछ होता होगा, वो मतलब बहुत ही सब सोच समझ के वो सेलेक्ट करती हैं. तो हमारे में से तो किसी को भी उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया था. हाँ, बस ये हुआ था. उसके बाद वो तुरंत बोल भी दी थी कि नो वन ऑफ यू आर सेलेक्टेड इन दिस राउंड, सो यू कैन लीव फॉर टुडे, केम ऑन द नेक्स्ट वेन्यू. बस ये हुआ था उस टाइम. फिर उन्होंने साफ बोल दिया था कि आप वेन्यू के लिए, मतलब वेन्यू खाली करने के लिए उन्होंने बोला था कि आप वेन्यू खाली कर दो. तो फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे. ये तो मेरा रहा कि क्या मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ पे. ठीक है, मेरा एग्जैक्ट एक्सपीरियंस बताने का सेंस ये है कि ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो. अगर आप वेन्यू पे जा रहे हो, आपको दिख रही है कि राखी मैम है, तो आप अपने आप को वहीं पे मेंटली प्रिपेयर कर लो कि हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का वो मतलब मौका नहीं देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देने का मौका नहीं मिली. वो 1 से 2 क्वेश्चन ही आपसे पूछेंगी, आप उसी में आपको अपना इंप्रेशन क्रिएट करना है उनके सामने. आपको वहीं पर तुरंत आपको प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वो चांस नहीं दे रही है आपको आंसर देने का. उसके बाद now I'm going to show what the exact question she asked with me and the other candidate. First उन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा था, what skill do you possess which are essential for the job profile of a flight attendant. उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था. ये तो मेरा बस उन्होंने बस ये क्वेश्चन पूछा था. अगर आपको इसका आंसर भी चाहिए कि मैंने क्या आंसर दिया था या फिर बाकी क्या आंसर दिए थे या फिर क्या आंसर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तो आप मुझे बताना. आई विल डेफिनेटली अटैच अ सैम्पल आंसर फॉर यू. और उसके बाद उन्होंने हम ही लोगों में से एक कैंडिडेट से उन्होंने ये पूछा था कि हु इज़ योर फेवरेट फैमिली मेम्बर. ये सेकेंड क्वेश्चन था फ्रॉम वन ऑफ आवर कैंडिडेट, बैच ऑफ आवर कैंडिडेट. एंड उन्होंने थर्ड क्वेश्चन पूछा था, हाँ, टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन. डेली रूटीन वाला क्वेश्चन तो वो ज़्यादा पूछ रही थी बिकॉज आई लिसन दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनी ऑफ द कैंडिडेट. शी इज़ आस्किंग टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, सो यू मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस आंसर. एंड द फोर्थ, वाई शुड वी हायर यू. उनका फोर्थ क्वेश्चन था, वाई शुड वी हायर यू. एंड फॉर बिफोर मूव टू नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बार बार यहाँ क्यों देख रही हूँ, तो मैं बता दूँ कि मैंने ये यहाँ पे मैंने नोट करके रखा है, वही मैं देख के आपको बता रही हूँ. बिकॉज उस टाइम मैंने लिखा नहीं था कोई भी क्वेश्चन. अब मुझे वीडियो बनाना पड़ा इसलिए आई जस्ट रिकॉल ऑल द क्वेश्चन, आई राइट इट डाउन टू
let you know about the question. Yes, हमने बता दिया 4. हाँ, first वही, what skills do you possess which is essential for the job profile of flight attendant. Second, who is your favorite family member. Third is tell me about your daily routine. Then fourth, what skills is required to become a flight attendant. I just say that to make you clear that the first question which she is asked to me, that what quality you possess, and this question she asked to another candidate that what quality is essential for the being flight attendant. The both question are the same, only the way of asking is different, so don't confuse between this question. And the last one is, if you are working and you mention in your CV that I am experienced, so she will definitely going to ask you, tell me about your working experience. ये तो फिक्स्ड है. अगर मोस्टली मैं बता रही हूँ 90% है कि इफ यू आर वर्किंग, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू, कोई भी HR है, शी विल डेफिनेटली गोइंग टू आस्क यू दैट टेल मी अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस. सो these are the 6 question. You make sure that you are preparing. Going to share some tips which you should keep in mind before going to the interview, related to your personality, related to attire, grooming. For this, firstly, you make sure that you are in proper attire. I saw that many of the candidates came for the interview in wearing trouser and all this, but the HR already said that if you are not in proper attire, if you are not wearing A-line skull, so you can borrow it with someone else, otherwise we are not going to take the interview. जस्ट ऐसे उन्होंने क्लियर कर दिया था वहाँ पे कि यू शुड बी इन प्रॉपर अटायर. सो आप पहले से ये सब चीज़ें मत करो, आप पहले से प्रॉपर अटायर में ही जाओ कि वहाँ मेन मौके पे अटायर वगैरह के लिए तो प्रॉब्लम मत हो. सेकेंड, ग्रूमिंग. आप ग्रूम इनफ हो, आप अच्छे से ग्रूमिंग करके जा रहे हो. ग्रूमिंग डजंट मीन्स कि यू पुट अ लॉट्स ऑफ मेकअप लाइक वी आर डू इन द वेडिंग, नॉट लाइक दैट. if you have that skills, so you do a good and impressive makeup look. But if you don't have that much of idea, so don't do experiment on your interview day. Just keep it simple, just put some, मैं पूरा डिटेल तो नहीं जाने वाली हूँ मेकअप की अबाउट, बट हाँ, अगर मेकअप से भी रिलेटेड आपको क्वेरी है, सो यू कैन कमेंट डाउन. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, बिकॉज आई हैव proper knowledge, not I can say proper, but I have enough knowledge for this interview about the makeup, about the grooming. So if you have query related to this, so I definitely make a detailed video on this topic. हाँ, so मैं क्या बोल रही थी, मैं अपने मेन टॉपिक्स पे से ही हट जाती हूँ समझाते समझाते. हाँ, तो क्या था कि हाँ, आप प्रॉपर ग्रूमिंग में हो, या आप मेक श्योर करो बन अपना क्लियर है. मैंने देखा था कुछ लोगों का कि मतलब होता है ना, ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल करके आ रहे हो दूर से, तो बाल वाल ऐसे निकल जाता है. तो आप मेक श्योर करो कि आप इंटरव्यू देने चाह रहे हो 4 से पहले, उसके पहले आप ये सब चीज़ें अपना सही कर लो. वहाँ पे वॉशरूम होता है, आप जाके सही कर सकते हो. हाँ, ये है कि वॉशरूम में बहुत भीड़ होती है, बट थोड़ा बहुत टचअप हो सकता है वहाँ पे वॉशरूम में. नहीं तो आप वहीं पे साइड में कहीं भी फ़ोन खोल के ऐसे थोड़ा बहुत कर सकते हो. तो आप इतना लेके जाना, थोड़ा सा कॉम वगैरह, क्यों जस्ट डू योर, जस्ट क्लीन योर हेयर. हाँ, ये हो गया सेकेंड. थर्ड क्या था वहाँ पे, मैं भूल गई क्या था थर्ड. हाँ, थर्ड ये था रजिस्ट्रेशन. ये मुझे आपको बताना था कि आप वो वहाँ पे चेक करते हैं. वो आप जब जाओगे फर्स्ट, व्हेन यू गो फॉर द फर्स्ट राउंड, she will definitely going to ask ki have you completed the registration process or not, or if you are not completed, so she will say that ki firstly you complete your registration process, then come for the इंटरव्यू. मतलब देन केम फॉर द, मतलब आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर आप इंटरव्यू देने मतलब आओ अंदर. पहले आप यहीं बैठ के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो. तो अब मैं आपको बता दूं कि वेन्यू पे देयर इज अ लॉट ऑफ नेटवर्क एंड नेट इश्यू. Your network is working so slow.
एंड जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है मैं बहुत ही लेंदी है, जिसको नहीं पता उसको बता दूँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लेंदी है, बहुत सारे CV डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने पड़ते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन. तो आप मेक श्योर दैट यू हैव प्रायर you have prior completed your registration process before you go for the interview. Before you go for the interview. और हाँ, मैं एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि मैंने क्या गलती की थी कि मैं फर्स्ट इंटरव्यू के लिए कि मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने वो अपना ईमेल जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का आता है ना कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योरसेल्फ, वो आपके पास रहना चाहिए ईमेल. वो वहीं देखते हैं, वहाँ पे वो देखते हैं कि आपने किया है कि नहीं किया है. हाँ, और मैंने क्या किया था कि मैं अपना फर्स्ट इंटरव्यू देने के बाद मुझे लगा था कि फिर मुझे जब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो फिर से मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ा था, तो आई डिलीटेड दैट ईमेल. सो डोंट डू दिस मिस्टेक. अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर ले रहे हो तो वो 6 महीने तक वैलिड रहता है. 6 महीने के लिए आप जाओ, हर महीने इंटरव्यू दो, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है. तो आप ये मत करना मेरी तरह गलती कि आप एक इंटरव्यू देने के बाद आपने ईमेल ही डिलीट कर दी. हाँ, तो ये सब पॉइंट है जो आपको पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है. ग्रूमिंग, अटायर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप पहले से करके जाओ. दैट्स इट. आप ये सब चीज़ें ध्यान दो, ये सब टिप्स ट्रिक, बाकी अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करो एंड जस्ट गो फॉर द इंटरव्यू and you will definitely going to achieve your dream job. So for today I'm just going to end up this video. Whatever the query and whatever the issues you are facing, just let me know in comment and I will make sure that I'm answering, and if I think that it is necessary, so I also make a detailed video on that topic. हाँ, एक और सबसे important चीज़, आप make the video for you all guys. सुन रहे हो ना, आपके लिए सिर्फ वीडियो बन रही है. सो मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग माई वीडियो, कमेंट डाउन एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग दिस ना, सो हाउ आई गेट टू नो दैट माई वीडियो इज हेल्पिंग समवंस और नॉट. सो प्लीज डू, यू कैन डू दिस इज स्मॉल टास्क यू कैन डू फॉर मी. सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी पॉजिटिव. यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अचीव योर टारगेट. बाय बाय.